اب آئیے، جو شخصیت ہمارے درمیان ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر دی ہے، اور ان کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ مزید اور طاقت عطا فرمائیں، اس لیے کہ ہر علاقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے کام کرنے کے لیے۔ جیسے اب آکوٹ میں بھی نثار بھائی بول رہے تھے کہ بہت 2% کیا آکوٹ کی تعداد کے مقابلے میں تو یہ قطرہ ہے۔ ابھی سمندر تو اگر پلاٹ کا ایریا لے لے تو یہ سمندر پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بندوں میں سے آپ کو چنا ہے، اور یہ اللہ کا چناؤ ہے، اور اللہ جب جس بندے سے جاتا ہے نا اس سے کام لے لیتا ہے۔ پھر اگر اس کی ذات کام لینے پر آئے تو وہ مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں سے بھی کام لے لیتا ہے، پھر ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ذات چاہے تو ہم جتنا ناز کرے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے کام کے لیے چن لیا ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے، ایسی ایک ذات جس کو اللہ نے آکوٹ نہیں آکوٹ کے قرب و جوار کے لیے چنا، وہ ذات جو ہمارے درمیان تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرا تقریباً کافی عرصہ حضرت کے ساتھ میں گزرا ہے، کافی راتیں گزری ہے، کافی ملاقاتیں ہوئی ہے۔ وہی ذات مولانا امیر رضا کی ہے، جن کی شفقتیں، جن کا خلوص، جن کی محبتیں، جن کا لوگوں سے ملنا، ایک کنیکٹیویٹی، الحمدللہ ساری صفاتیں حضرت کے اندر ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے سینوں کو منور و مجلہ کریں۔ مولانا امیر رضا صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ سب یہاں پر آئے، آپ سب کا شکریہ۔ ذمہ دار حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، علماء کرام کی ذات سب یہاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ حضرات میں سے سبھی لوگ جو ہے ذمہ دار ہیں، سب نے جو ہے محنت کی، کاوشیں کی، کوششیں کی پروگرام کو، اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اور کسی کو کہنے کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا ہے۔ دوسری بات، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا یا ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دنیا والوں کو بدلہ نہیں دے سکتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ آپ کسی کو کچھ دے سکتے۔ کوئی کتنا بھی کچھ بھی کرے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ اگر بدلہ دینا چاہے، مولا اگر اجر دینا چاہے، اور حقیقت میں وہی اجر کا دینے والا ہے، حقیقت میں وہی بدلہ کا دینے والا ہے، حقیقت میں وہی انعام و اکرام سے بندوں کو نوازنے والا ہے۔ آج ہمارا یہاں جمع ہونا، جس کی وجہ آپ کو تو معلوم ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے اعتبار سے جو ہے آپ سب کو یہاں بلایا گیا۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ کھانا کھلانے کے لیے ہم کو بلایا، یا بھائی کھانا کھلا کر ہم کو بول رہے ہیں کہ ہمارا تم نے کام کیا ہے تو ہم تم کو بدلہ دے رہے ہیں، نہیں، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کھانا کوئی مدرسے کے پیسوں سے یا کہیں کسی اور کے ذریعے سے کھانا نہیں کھلایا گیا آپ کو۔ صرف 2-3 جو 4 ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے حضرت، ہم چاول، تیل، اس طریقے سے دوسرے سامان جو ہیں ہم کر دیتے ہیں، آپ کھانے کا انتظام کر دو۔ اس طریقے سے جو ہے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کسی کے دل ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ بھائی مدرسے میں کھانا ہے تو مدرسے والوں نے کھانا کھلایا یا مدرسے کا کھانا ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یا 10 روپے 50 روپے چندہ کر کے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا، ہرگز یہ ہماری سوچ یا ایسا کام نہیں کیا گیا۔ بہر کیف، تو آپ سب کا یہاں آنا، مولا تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دوسری چیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ
किसी का साथ ना हो, जब तक के लोगों का साथ ना हो, जब तक के कौम का साथ ना हो, जब तक के नौजवानों का साथ उसके जो है कांधे से कांधा मिलाकर लोग न चलें, तब तक कि कामयाबियों की मंजिल से कोई बंदा हमकरार नहीं हो सकता। बहुत पहले किसी ने कहा था, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, बढ़ता गया। इस तरीके से जो है मामलात हुआ। हमने या आपने भी जो है इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इसका एहतमाम इतने अमन सुकून शांति के साथ जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है। ठीक है, दिल से अगर कोई बंदा कोई काम करता है तो मौला उसमें कामयाबी अता फरमाता है, लेकिन अगर वही काम दिखावे के लिए हो जाए तो फिर याद रखो वो काम कितना भी अच्छा तुम कर लो, लेकिन कामयाब आप नहीं हो सकते। आप जानते हैं सैयद साहब जब यहाँ आए, सैयद अमीनुल कादरी, तो उनके जुमले थे, उन्होंने जाते जाते क्या कहा मालूम है आपको? सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये कहा कि आकोट का जो प्रोग्राम है, आकोट का जो इज्तिमा है, मेरा बहुत दिल खुश हुआ। यानी मेरे यहाँ आकर जो है मुझे एक अपनापन लगा, अपनाइयत मैंने महसूस किया। दूसरी चीज उन्होंने एक बात कही कि ये जो इज्तिमा हुआ है आकोट का, सैकड़ों इज्तिमा उनका तो रोज का मामूल है, आज यहाँ तो कल वहां। हमारे यहाँ खुद बेंगलोर से आए थे, मतलब महीनों सालों जो है ऐसी उनका सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, बड़ी शख्सियत है, बड़ी जात है, अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, मौला ने बुलंदी अता फरमाई है, अल्लाह ने उनकी जबान में वो तासीर वो असर रखा है। ठीक है, कि जिनकी बात, जिनके खिताब, जिनके बयान सुनकर जो है नौजवानों की दिल की दुनिया बदलती है। बहुत सारे गुनहगार नेकोकार बन जाते हैं, रास्ते से भटके हुए लोग रास्ते पर आ जाते हैं। ये अल्लाह का खास करम है उन पर, हर किसी पर ऐसी लुत्फो करम की बरसात नहीं होती। अल्लाह की खास नवाजिशें अताएं सैयद साहब के साथ हैं, और हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही जो है उनका साया नौजवानों के ऊपर तादेर कायम रहे। तो सैयद साहब ने कहा कि कोई भी काम अगर खुलूस से आप करो तो अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाता है। और मैंने देखा कि आकोट में जो इज्तिमा हुआ, सब ने दिल से काम किया। ये उनके अल्फाज थे। क्या कहा उन्होंने? दिल से, मतलब लोगों ने मेहनत किया, कोई रियाकारी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई बड़ापन नहीं था, कोई मैपना नहीं था कि मैं आगे आऊंगा, मैं ये करूंगा। कहा कि जितने भी लोगों को मैंने देखा, यह इज्तिमा आकोट का जो मैंने मुआयना किया, तो सब लोगों ने दिल से काम किया, खुलूस से काम किया, लिल्लाहियत से काम किया। और जाहिर सी बात है, खुलूस से अगर तुम काम करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब आप हैरत करोगे, इतने जितने लड़के बैठे हैं ना, इसमें से अभी आधे लोग नहीं है जिन्होंने काम किया। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग ठीक खाना खा के कोई जरूरत होगी, मजबूरी होगी, कोई मामला होते हैं, मसले होते हैं, चले गए। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब ने जो उस दिन काम किया, मेहनतें की, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने कोई और काम को अंजाम दिया, किसी ने पार्किंग का मसला संभाला। ये सब जो लोग, जितने भी नौजवान थे ना, आप कभी देखे होंगे उस दिन, या आप पूछना किसी से कि कोई बंदा अगर खाने के इसमें है तो रात को 12 बजे तक जो है वहां खाना खिलाने में था। रात को 12 बजे तक कोई अगर पार्किंग वाला बंदा था, दूसरों की बात क्या, ये अंटू भाई बैठे हैं, इनकी एग्जाम्पल मिसाल मैं तुमको दे रहा हूं। ये बंदा रात को 12 बजे तक कुर्सी लगा के हाई स्कूल के सामने बैठा था, 12 बजे रात तक। क्या मिला उनको? किसने क्या दिया? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि मैंने दीन की खिदमत करना है, मैंने कौम का भला करना है, मैंने जो है भाई लोगों का हौसला बढ़ाना है। मेरे जरिए से अगर अल्लाह दीन का काम ले रहा है तो मेरी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है। यही तो मानसिकता होती है ना, यही तो सोच थी। राजनीति अलग चीज है, ठीक है, सियासत अलग चीज है। अगर तुम किसी नेता की अगर झंडा उठा के घूमोगे तो 100-200 रुपए मिल जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ 100-200 तो दूर की बात है, 1-2 रुपए किसी को नहीं दिया गया, बल्कि लोगों ने उल्टा और दिया, सपोर्ट किया, दामे दिनमे कदमे सुखने। ठीक है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना प्रोग्राम, इतना बड़ा इज्तिमा, लेकिन इसके अंदर कोई सियासत नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी, कोई यानी इंसान के दिल में खोट नहीं थी कि मैंने ये करना है तो इसके जरिए से मुझे ये मिलेगा, मैं ये कर रहा हूं तो इसके पीछे मेरा ये मकसद छुपा है। ये हरगिज़ ये मकसद नहीं था किसी का। सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी शहर के जो है जिम्मेदारी जिन जिन लोगों को दी गई थी, सबने इस अंदाज से, इस तरीके से जिम्मेदारियों को निभाया कि बस किसी को कोई शिकवा या शिकायत का मौका हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं मिला। यानी हमने जो सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर आपने क्या किया, इज्तिमा को, प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना ताउन, अपना योगदान आपने दिया। ये तो बात हो गई। दूसरी चीज, कितने लोग थे आपको मालूम है? वॉलंटियर हजरात कितने थे? 300 से ऊपर थे। कितने? 300 से ऊपर नौजवान कि जिन्होंने मगरिब से लेके, बल्कि कई तो ऐसे थे कि 2 बजे से, 3 बजे से, दोपहर से रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक
300 350 समथिंग इसके आसपास जो है नौजवानों ने जो है क्या किया, मेहनतें की। किसी ने खाना खाया नहीं खाया, किसी ने तकरीर सुना नहीं सुना, कोई जो है सैयद साहब से मिला नहीं मिला, समझ रहे ऐसे सब। लेकिन फिर भी जो है सबने क्या किया, 11 बजे 12 बजे तक जो है अपनी मेहनतों से जो है इज्तिमा को क्या किया, कामयाब बनाया। तो ये 300-350 जो नौजवान है ना, आपको क्या लगता है 300 यहां है? 300 बंदे 300 जवान एक जगह जमा हो जाना मतलब क्या होता है इसका मालूम है आपको? 300 नौजवान अगर कहीं बैठ जाएं, 300 नौजवान अगर एक जगह खड़े हो जाएं तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े से बड़े मामलात को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि लगन से, दिल से, खुलूस से जो है बंदा क्या करे, काम करे। अब मिसाल के जरिए से मैं बात समझाना चाह रहा हूं, मिसाल के जरिए से कि 300 लोग क्या कर सकते हैं, 300 लोग क्या कर सकते हैं। आज हमारी जो सोच है ना, मानसिकता है, वो ये है कि मैं क्या करूंगा, मेरे से क्या होगा, अरे मेरे जेब में तो 5 की नोट है, मेरे जेब में तो 10 रुपया है, मेरे जेब में तो 50 रुपया है, मेरे से क्या होगा, अरे मेरे 100 रुपए देने से किसका क्या उद्धार हो जाएगा, किसका क्या बन जाएगा कि बिगड़ जाएगा, ये सोच होती है ना। मेरे करने से क्या होगा। तो आप भाई, आपके करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सब के करने से बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं आप। एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 100 200 300 400 लोग अगर जमा हो गए तो बड़े से बड़ा काम करने की ताकत ये रखते हैं, बड़े से बड़ा। अब एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभी 3 दिन पहले की बात है। कितने दिन पहले? 3 दिन 4 दिन पहले की बात है। एक बंदा आया और उन्होंने कहा कि एक लड़की की शादी है। किसकी? बच्ची की शादी है, और बच्ची का जो बाप है वो माजूर है। क्या है? माजूर है, गरीब बच्ची है, गरीब घर की लड़की है। अब जाहिर सी बात है, बच्ची तो बच्ची है, बेटी तो बेटी है। बेटियों के बारे में आता है, बेटियां सांझी होती हैं। सांझी मतलब जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी, समझ रहे हैं, जैसे आपकी बेटी वैसे किसी तीसरी की बेटी। मतलब इनके अंदर कोई फर्क नहीं किया जाता, इनके अंदर जो है ना कोई ऐसा नहीं कि भाई इसकी है तो नहीं, उसकी है तो हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बेटी बेटी है, ये इस्लाम दर्श देता है। ये जो है पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ये दर्श दिया, बच्चियों के हवाले से खास तौर से, बेटियों के ताल्लुक से खास तौर से, यानी बेटियों से ऐसा लगाव आक़ा करीम ने दुनिया वालों को जो है दिया है तरीका कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमतु बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या फरमाया? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका ने यह कह के क्या बताना चाहा? दुनिया वालों को मेरे मुस्तफा पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों मुबारक हो, जैसे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर तुमने भी अगर इस तरीके से अपनी बच्चियों से प्यार किया तो गोया तुमने मुझे खुश किया, और जिसने मुस्तफा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। आका है, सहाबा का मजमा है, बात चल रही थी, आका करीम कुछ बयान कर रहे थे बच्चियों के हवाले से। अचानक बात करते करते होता है ऐसा, आका करीम ने एक बात कही कि जिसकी 3 बेटियां हैं। कितनी बेटियां? 3 बेटियां हैं, और 3 बेटियों की बंदा तरबियत करे, परवरिश करे, परवान चढ़ाए, शादी करे उनकी, और उसके बाद जो है अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाए। कल जब कयामत का दिन होगा तो वो बाप और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। ये ऐसा इशारा किया, 2 उंगलियों को ऐसा जोड़ के, ऐसा अलग नहीं, जन्नत में ऐसे होंगे, इशारा करके मुस्तफा ने फरमाया 3 बच्चियां। फिर एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अगर किसी की 2 बेटी हो तो 2 बेटी हो तो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर 2 बेटी होंगी तो भी जो है जन्नत में वो मेरे साथ मेरी मैयत में रहेगा। 1 बेटी हो तो आका फरमाते हैं तो भी जो है जन्नत में मैं जन्नत में उसको लेके जाऊंगा, मैं उसका सिफारिशी बनूंगा, मैं उसकी शफाअत कराऊंगा। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह 3 बेटियां हों, 2 बेटियां हों, 1 बेटी हो, अगर किसी की 1 भी बेटी ना हो तो? यहां ऐसे लोग होंगे, है ना, कि जिसकी 1 भी बेटी नहीं होगी। ऐसे भी लोग होंगे जिनकी 2 बच्चियां हैं, ऐसे ही बंदे होंगे जिनकी 3 बच्चियां हैं। तो आका से पूछा गया, अगर किसी की 1 बेटी भी ना हो तो उसके बारे में क्या आप फरमाते हैं? आका करीम ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर 1 बच्ची भी नहीं है उसकी तो मैं मोहम्मद उसके लिए काफी हूं, मैं उसकी शफाअत करके जन्नत में उसे लेके जाऊंगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के ताल्लुक से, हाँ तो मैं बात क्या कर रहा था, बच्ची का मसला आया, शादी का, माजूर है बाप, आए हजरत कुछ हो जाए, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं कुछ कर सकता हूं? यही कर सकता हूं, 100 200 500 1000 अगर जेब में है तो दे दूंगा, वरना मैं क्या करूंगा बताए ना मुझे आप। वो बंदा न जाने कितने लोगों के पास गया होगा ये रुदाद लेके, ये दुखड़ा लेके कि मेरी बेटी है। और सिर्फ ये 1 बच्ची की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आकोट में ऐसी सैकड़ों बच्चियां हैं, सैकड़ों बेटियां हैं कि जिनकी उम्रें हो चुकी हैं, जिनकी शादी का वक्त करीब आ चुका है,
لیکن جو उनका इंतजाम नहीं है कि उनके हाथ पीले कर सकें। ऐसे कईयों बच्चियां हैं, कईयों बेटियां हैं। कल की बात, दूसरी एक मिसाल, बंदा आया, ठीक है, वो पलंग बनाना था, उसको फर्नीचर बनाना था, सोफा बनाना था बेटी के लिए, निकाह के लिए, जहेज के लिए, समझ रहे आप। तो वो जब सोफा फर्नीचर बनाने की बारी आई तो उसके पास सिर्फ 20,000 थे। कितने? 20,000। बिल था 90,000 का। कितना था? 90,000 का। 20,000 का बिल था। अब वो 4 हफ्ते बोले बाकी हैं बीसी को। काय को? बीसी को 4 हफ्ते बचे हैं। 4 हफ्ते के बाद पैसे उठेंगे, हजरत अगर कुछ हो तो आप कर दें, 4 हफ्ते के बाद पैसे मिल जाएंगे। सोचे जरा, बंदा जो है इस तरीके से जगह जगह इधर उधर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगर ठीक है, मैं कहता हूं ऐसे लोग हैं भी, और अगर हम इस लायक अगर हो जाए, अगर अल्लाह ने हमको ये ताकत वाला बनाया, अगर हम लोगों के दुख दर्द दूर कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक छोटा काम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा। और ये एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, 2 लोग नहीं कर सकते, 4 लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर 300 लोग एक जगह खड़े हो जाए तो मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि मेरी कौम में, मेरे समाज में जो ऐसी बच्चियां हैं, ऐसी बेटियां हैं, इंशाअल्लाह उनका दुख दर्द दूर हम जो है कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमको क्या करना पड़ेगा? एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा। हमको जो एक आवाज पे सबने क्या करना पड़ेगा? लब्बैक कहना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अब यहां 300 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 300। एक बंदा खड़ा हुआ 100 रुपए दिया। कितना रुपए दिया उसने? 100 रुपया। 300 लोग देंगे तो कितना होगा? 30,000 होगा। कितना होगा? 30,000। 300 लोग अगर कितने रुपए दिए तो 100 रुपया। सिर्फ एक बंदा 100 रुपए दिया तो कितने हो जाएंगे? 30,000। 200 रुपए दिए तो 60,000। 300 रुपए दिए तो 90,000। 400 रुपए दिए तो 1,20,000। 500 रुपए दिए तो 1,50,000। सोचो जरा, अगर सिर्फ 500 रुपए अगर एक एक बंदा दे दे, एक बच्ची की शादी नहीं होती 1.5 लाख में? आराम से हो जाएगी, आराम से। देखें कहां जरूरत है। ऐसा नहीं किसी को भी उठा के पैसे दे दें, कुछ भी कर लें, नहीं। पहले जांच करें, पड़ताल करें, वाकई हकीकत में रियलिटी देखें। अगर है मुस्तहिक, अगर है जरूरतमंद, ऐसे बंदे की मदद करने में क्या जाता है यार। और लोगों याद रखो, लोगों की मदद करना अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल है, सबसे पसंदीदा अमल है। तुम नमाज पढ़ लो, तुम रोजा रखो, तुम हज करो, तुम ज़कात दो, लेकिन अगर तुम लोगों से मुस्कुरा के सलाम नहीं कर सकते तो ये नमाजें तुम्हारी काम की नहीं है। याद रखना है। बड़े बड़े चट्टे लगा के हम जो सोचते हैं नहीं, बड़े नमाजी बन गए, बड़े हाजी बन गए, 4 नहीं 40 मरतबा हज करके आ जाओ, लेकिन अगर लोगों से मिलते हो तो दिन चेहरे पे 12 बजे रहते हैं तुम्हारे, ये तो तुम्हारी नमाजें, हज, ये जो इबादतें हैं ना, हाँ, जरूरी नहीं कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। क्यों? इसलिए कि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। मुस्कुराने को मुस्तफा ने सदका कहा है। लोगों की खैर ख्वाही करने को आका ने पसंद किया है। अरे खुदा के बंदे तो है हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। लोगों के काम आना ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी के दुख दर्द दूर कर देना, कभी आप करके देखो, करके देखना, प्रैक्टिकल। हाँ, बड़ी कीमती बात कह रहा हूं। कभी नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग, पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं आप। नमाज पढ़ के दुआ करते हैं ना, करना चाहिए। दुआ में क्या करते हैं? अल्लाह मेरी दुकान में बरकत आ जाए, अल्लाह मेरी रोजी बढ़ जाए, अल्लाह मेरा कारोबार बढ़ जाए, अल्लाह मेरा प्लाट लेना हो जाए, मौला तबारक व तआला मेरे बच्चे बड़े हो जाए, अरे अल्लाह मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे पोस्ट में लग जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा भला हो जाए। ये दुआ करते हैं ना हम लोग। बेशक अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन कभी नमाज पढ़कर, तन्हाई में बैठकर, आंखों को उठाकर अपने लिए नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में ये कहे कि मौला मेरा पड़ोसी परेशान है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पड़ोसी के लिए दुआ करेंगे, आप अपने चेहरे पर हाथ बाद में फेरेंगे, अल्लाह उसकी भी जरूरत को पूरी कर देगा, तुम्हारी भी जरूरत पूरी कर देगा। अल्लाह तुम्हारी भी जरूरत पूरी कर देगा। कभी करते हैं ऐसा? हमको तो अपनी पड़ी रहती है। क्या हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे? हम क्या दूसरों का भला करेंगे यार? कभी पड़ोसी के लिए दुआ करो, कभी औरों के लिए दुआ करो, कभी दूसरों का पेट भरने की कोशिश करो, कभी औरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करो, कभी दूसरों को हंसाने की कोशिश करो, कभी किसी गरीब के सर पे हाथ रखने की कोशिश करो, कभी किसी बेवा का सहारा बनने की कोशिश करो, कभी किसी यतीम को तसल्ली देने का काम करो। खुदा की कसम जिंदगी जन्नत बन जाएगी। खुदा की कसम, हाँ, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। करते ही नहीं हो? तावीज दे दो, धागा दे दो, पानी दे दो। अरे इलाज है भाई। खुश रहना चाहता है, लोगों को खुश कर। खाना चाहता है, लोगों को खिला। अच्छा पहनना चाहता है, लोगों को अच्छा पहना। खुद कभी परेशान नहीं होना चाहता, लोगों की परेशानी दूर कर।
ऑटोमेटिक कभी अल्लाह तुम्हें परेशानी नहीं अता फरमाएगा। बीमारी में लोगों के काम आओ, मुसीबत में लोगों के काम आओ, ठीक है, दुख दर्द में लोगों के सहारा बन जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे काम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे, हमको अपने लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए करते हैं। ठीक है, अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो। मेरे कहने का मतलब ये था कि 300 लोग है ना, क्या करना है हमने, मैं अभी 100 रुपए नहीं मांग रहा हूं आपसे, नहीं तो बोलूंगे यार हजरत तो देखो खाना खिला के पैसे मांगने लगे। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, अल्लाह ने दिया है, बहुत है अपने पास, है ना, अल्लाह का एहसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आने वाले वक्त के लिए भविष्य बता रहा हूं, मुस्तकबिल के लिए मैं आपके सामने ये तजवीज, ये बात, ये खाका रख रहा हूं। आपको पसंद है, अच्छी बात है ना, होना चाहिए ना। कितने परेशान है बेचारे, कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो रास्ता देखते हैं कोई आए, कई तो ऐसे हैं हजरत, कई ऐसे हैं खुदा की कसम इतने गैरतमंद होते हैं बेचारे, वो बोल नहीं सकते, हाथ फैलाना गवारा नहीं है उनको, बोलने में उन्हें शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्या बोलना। और कई ऐसे बेगैरत हैं कि जगह जगह हाथ लेके फैला के खड़े रहते हैं, हाँ, 50 दरवाजे में जाते हैं, ऐसे ही बेगैरत बेशरम लोग हैं। लेकिन मैं गैरतमंद लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को भी देना अच्छा है जो मांगते हैं, और ऐसे लोगों को देना ज्यादा अच्छा है जो नहीं मांगते, ज्यादा अच्छा है। पहले किसको ढूंढो, पहले उसको ढूंढो जो मांगता नहीं, हाँ, पहले उसको ढूंढो जो गैरतमंद है, पहले उसको ढूंढो जो शर्म करता है किसी के आगे हाथ फैलाने में। ऐसे बंदे को तलाश करो, ऐसे बंदे को ढूंढो, और उसके बाद फिर उसका क्या करो, तुम ताउन करो। तो आने वाले वक्त के लिए हमने ये करना है। इज्तिमा तो हो गया, प्रोग्राम हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी तकरीरें हुई, बहुत अच्छे इंतजाम हुए, सब अच्छा हुआ। लेकिन हमने ये करना है कि जैसे अभी हमने एकजुटता के साथ इतने नौजवान एक जगह जमा होकर हमने जो है दीन और सुन्नियत के लिए काम किया है, आगे आने वाले वक्त में भी हमने क्या करना है, ये काम करना है। इसके लिए हमने अभी रजिस्टर में सबका नाम, नंबर, पूरा डाटा, ठीक है, हमने ले लिया है। कभी अगर ऐसा वक्त आया, कभी अगर ऐसा वक्त, इंशाल्लाह हम ऐसी कोई मतलब बॉडी तंजीम तश्कील कर देंगे, ठीक है, 200-300 350 बच्चे जिसमें रहेंगे। कभी अगर जरूरत पड़ती है तो आपको बोला जाएगा फोन करके या किसी दूसरे माध्यम से कि भाई साहब हमने ये काम करना है, ये सामने ये जरूरत है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए अगर हमने दे दिया, 300 लोग देंगे, 50,000 इसी मिनटों में हो जाएंगे, बड़ा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। कितनी अच्छी बात है, लेकिन करने सब होता है ना। बोलने में बातें अच्छी लगती हैं, हम सिर्फ थ्योरी को लाइक करते हैं, प्रैक्टिकल को लाइक नहीं करते। होना क्या चाहिए, थ्योरी अपनी जगह, थ्योरी नहीं भी करोगे तो चलेगा, प्रैक्टिकल करो भाई। क्या करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। यहां सिर्फ मालूम है नमाज ऐसे पढ़ना है, ठीक है, खड़े ऐसे होना है, नियत ऐसे बांधना है, अरे बांधो तो सही जाके, इसलिए मालूम है खड़े ऐसे होते हैं, रुकू ऐसा करते हैं, सजदा ऐसा करते, करो तो सही। सिर्फ थ्योरी नहीं, दोनों चीजों को क्या करो, गले से लगाओ। थ्योरी भी होना चाहिए और हमारे पास प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। वक्त इतना नहीं है कि मैं और सब बातों का जिक्र जो आपके सामने करूं, बस बार बार 1000 बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, ना हम कुछ कर सकते। ये इमरान सेठ है तुम्हारे मसाले वाले, है ना, इन्होंने सब काम किया, बहुत अच्छा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में, इल्म में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए, है ना, बेहतर से बेहतर जीवन साथी अता फरमाए। दिल से दुआ करें, समझ रहे हैं आप। जावेद भाई सिद्दीकी हैं, तौहीद भाई हैं, मौलाना जावेद साहब हैं, ठीक है, हाफिज असरार साहब हैं, अपने अबू हुरैरा मस्जिद के इमाम साहब हैं, और कारी साहब हैं, मदरसे के अनीस भाई हैं, निसार भाई हैं, ये सब जो है, मौलाना असलम साहब हैं, मास्टर अनवर साहब हैं, है ना, ये सब सैयद मुबशिर साहब हैं, इन सब की बहुत मेहनत है। मौलाना नाज़िम साहब नहीं आए, हाँ, किसी वजह से नहीं आए, अमरावती गए। अकबर बादशाह साहब हैं, जो दिख रहे हैं ना सामने बैठे हुए, जानते हैं ना आप इनको, अल्लाह इनको सलामत रखे, दुआ करना इनके लिए। आपको बताऊं मैं इनके बारे में, हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन सुने, ताकि दूसरों के अंदर एक जज्बा पैदा होता है। खुदा की कसम कभी ऐसा लगता है दिल से दुआएं निकलती हैं, समझ रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है हमको कि हजरत दुआ करो, होता है ना। बाप बच्चों को कब दुआ देता है, माँ बच्चों को दुआ देती है, वो नहीं भी देगी ना तो दिल उसका हमेशा दुआ ही देते रहते हैं, हाँ, दिल से। क्यों, लेकिन काम वैसे करना तब, जैसे कि अब बाप हमारा लेटा है, एक झलक बता दूं, बाप लेटा है बिस्तर पे, हम ऑफिस से बाहर आए, ऑफिस से घर आए, दुकान से घर आए, अब्बू के पास चले गए, और धीरे धीरे जब पैरों को हमने 5 मिनट दबाना शुरू कर दिया। आपको कहना नहीं पड़ेगा अब्बू दुआ कर दो मेरे लिए, काम नहीं बन रहा है ना। आप काम ऐसा कर रहे हैं, वो बाप दिल से दुआ देगा, दूसरा दिन तुम्हारा काम बन जाएगा। करें कभी ऐसा, माँ लेटी है, माँ बैठी है, कदमों में जाके बैठ जाए, थोड़ी देर माँ के पिंडली को जो है दबा दें, मोहब्बत से, प्यार से। माँ को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मी मेरे लिए दुआ कर दो, नहीं, माँ दिल से दुआ देगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, दूसरा दिन आपका काम हो जाएगा।
तो काम ऐसे करना कि बोलने की जरूरत ना पड़े। जैसे आज लोग हजरत दुआ की दरखास्त, क्या फतरे की दरखास्त है? दरखास्त है, तेरी दरखास्त है, ऐसा कबूल हो जाएंगी दरखास्त? काम धाम कुछ है नहीं, दुआ की दरखास्त, काहे की दरखास्त? ठीक है, एक सभ्यता है, क्या है? सभ्यता है, परंपरा है, एक रीति रिवाज है, संस्कृति है, बोलने का एक तरीका है कि बोल देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कि आज के बाद बोलना बंद कर दो आप लोग, बोलो, नहीं तो बोलेंगे हजरत ने बोलना, लेकिन मैं जो तरीका, रियल जो तरीका है वो बता रहा हूं, ठीक है? बोले भी लेकिन काम भी ऐसे करें कि वो हजरत को तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़े, आपके बोलने से पहले हजरत के दिल से दुआएं आपके लिए निकलें। ऐसे काम करो, और ऐसे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं, ठीक है? हाँ, क्या करना पड़ेगा? दिल खुश करें सामने वाले का, जिस तरीके से हम खुश कर सकते हैं। तो ये जो बादशाह सलामत है ना, अकबर बादशाह, मदरसा जो आप देख रहे हैं ना, जानते हो 70 के आसपास बच्चे हैं। कितने बच्चे? 70 बच्चे हैं, 70। हाँ, अब वो 70 बच्चों की सब्जी भाजी, जितनी भी आलू प्याज मटर टमाटर कांदे वांगे, कौन कौन सी सब्जियां होती है, ये सब पूरा साल, आज से नहीं 2-3 साल से कंटिन्यू जो है, कंटिन्यू पूरी सब्जियां जो है इनके तरफ से आती हैं। सोचो, अब कोई 1500 खर्चा है, 20,000 30,000 महीने में लग जाते हैं, समझ रहे हैं आप? और उसके बाद हाँ, कभी ऐसा नहीं उनके दिल से, ऐसा कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हजरत मेरा नाम ले देना, कभी ऐसा नहीं कि जो है मैंने ऐसा किया किसी के सामने उन्होंने बोला हो, बिल्कुल नहीं। खुलूस लिल्लाहियत, यानी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए काम हम कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है, कोई जो बनावटी, कोई जो दिखावा वाला काम नहीं, कोई नाम नमूद नहीं, कुछ भी नहीं। कभी जबान पे एक जुमला तक लेके नहीं आया उन्होंने। और कभी भी कोई काम के लिए बोलो ना, बादशाह भाई वो जरूरत, हाँ ठीक है ना, आज तक मैंने तो ना सुना ही नहीं, कभी ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने कि नहीं मेरी तरफ से नहीं होती ये चीजें। हाँ, 5,000 रुपए इस्तीमा में दिया, इसके पहले की बात कर रहा हूं। फिर कोई चीज जरूरत पड़ी, हाँ ठीक है ना, कर दे, कोई मसला नहीं, कितना लगता बोलो मेरे को, मतलब भले रहे ना रहे, लेकिन दिल इतना बड़ा है, अल्लाह ने इतना खुलूस अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को जो है ना सलामत रखे, और इनके वसीले से दूसरों के अंदर भी ऐसा जज्बा पैदा फरमाए, ठीक है? दूसरे लोग भी जो है ऐसे बने, ताकि लगे कि नहीं यार, हाँ मैं समाज के हित में, कौम के हित में, लोगों के हित में मैं अच्छा कर सकता हूं। तो इनकी बात हो गई। दूसरे भी पूरा लिस्ट लगी है वहां पर, पूरा साल जो लोग देते हैं, ताउन करते हैं मदरसे के लिए, है ना? हम क्या शुक्रिया अदा करें यार, हा? हम क्या किसी के बारे में बोलें कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया? अल्लाह बेहतर जानता है, मौला तबारक व तआला को सब मालूम है, अल्लाह बेहतर बदला देने वाला है, अल्लाह करीम बेहतर जजा देने वाला है। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको बेहतर से बेहतर जजा अता फरमाए, है ना? अपनी आखिरत संवार रहे हैं, अपनी दुनिया संवार रहे हैं। हम भी जो है, अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हमारा भी फर्ज है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि जब भी अगर कभी जरूरत पड़े मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में, किसी मदरसे में, तो हमने क्या करना? अगर हम दे सकते हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमने आगे बढ़ चढ़ कर जो हमने क्या करना, उसमें हिस्सा लेना चाहिए।